Hey guys, and welcome to Nerdcast, where we nerd out about various topics. This is the part 3 for our podcast on peer pressure. एंड इवन पीयर प्रेशर में आते वक्त हम लोग एक बहुत बड़ा चीज भूल रहे हैं विच इज सोशल मीडिया जहाँ पे वी हैव द प्रेशर ऑफ पोस्टिंग गुड स्टफ अबाउट आवर लाइव्स ऑन We tend to, stop स्टोरीज. posting negative मैं stuff. पोस्ट ही करना छोड़ दिया है अभी तो लाइक मेरा अभी तक चल रहा है बट दैट इज सम पार्ट. सो बेसिकली तो व्हाटएवर आई वांट टू शो इज से पॉडकास्ट आता है उसका स्टोरी डालना दैट्स कम्प्लीटली हाँ फाइन कि यार वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, इम्पोर्टेंट चीज है कि थोड़े से yes व्यूज मिलने चाहिए. Yeah. बट मैं डेली क्या कर रहा हूँ लाइक हाँ एक जगह पे बैठ के अगर मैं लाइक पीसी पे कुछ कर ही रहा हूँ तो एक जगह बैठ पे उसका क्या स्टोरी डालूंगा ना. ट्रू एग्जैक्टली. और ये लोगों को प्रेशर आ जाता है कि वी आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स राइट नाउ, बट अभी जो इन्फ्लुएंसर्स है उनको इतना पीयर प्रेशर आ रहा है, इतना सोसाइटी का प्रेशर आ रहा है कि तुम लोग एक्टिव क्यों नहीं रहते. या इवन उनके वर्क के लिए है कि एक्टिव क्यों नहीं रहते. एंड दे हैव टू पोस्ट सम और द अदर कंटेंट which they want to be relatable. जैसे इवन आई गेस तन्मय भट्ट कर रहा है अभी. Yeah. I'm not offending him, but his desperation and need for his content has brought his vlogs quality down right now. Yeah. जो उसके he was posting a vlog around every Once a week. 10-12 days. Yeah, once a week. Once Now a it's like week. every Yeah. 3 days. Yeah, Okay. exactly. And the Like up to like I understand his concept and I understand his fans wanting to see him more. But quantity over quality is not a thing to go for, I would say. yeah, because the peer pressure about because the pressure about ये तो posting कुछ a नहीं यार. content. If you look at like how like अभी बीच में हुआ था कि तमर है ना जब said that कि उसने लास्ट वो competition किया था जब comedians वाला, and he said that this will be the last game of chess and now he will be like taking a break from chess for a while. Yeah. And everyone texted like started chatting him, camping him that no, don't leave chess and all, and he's still continuing with chess now. But like, why you're forcing someone to do what he doesn't want to do now? Let See, him do things at his own exactly. pace. अभी I don't know how many of you know about Shroud. So Shroud used to be a Counter-Strike professional player. Yeah. He decided to left Counter-Strike and start giving focus on more playing on PUBG. तो उसने जो PUBG स्टार्ट किया सबको लगा कि ये डाउनहिल जाएगा, बट the raw skill he had, he took the game to the next level. Because PUBG was not a great game. It had a good concept, but PUBG was a really buggy game. Yeah. Like literally Yeah, at the इतने start, bugs थे. Yeah. स्टार्ट के 2-3 इसमें इतने बग्स थे कि मैं परेशान हो गया लिटरली. मैंने भी ट्राई किया था वो गेम, बट वो मतलब बंदे ने गेम को लेके आया. Yeah. गेम बंदे को लेके आना चाहिए ऊपर, बट रिवर्स. He brought the game in Like side. this is Yeah. what like Shroud और Ninja का दोनों का यही है कि both of them Yeah, brought Ninja. each of their game to the Yeah. mainstream. Like Yeah, Fortnite exactly. आज वो वैल्यूएशन पे नहीं होता अगर निंजा ने नहीं खेला होता, Yeah, और PUBG वो वैल्यूएशन पे नहीं होता अगर श्राउड ने नहीं खेला होता तो. True. yeah, exactly. And one of the best And imagine examples. नहीं, and Yeah. imagine being Shroud अगर अभी भी काउंटर स्ट्राइक खेल रहा था. The current scenario of Counter Strike is it is nearly death है उसका, Dead, हाँ. almost death है. Yeah. And one of the best examples that have fought peer pressure and society's pressure is, I would say, Biswa and Karan Gill, Yeah. who were yeah, exactly. The reviews that they were doing, the videos they're doing, those videos were about what they're 5 years old now. Yeah, they are. And after that they started their own journey towards comedy. And while they were asked about the same thing like about 2 years ago, they said that we had to take a break from that. Obviously people are expecting we might go back there, we don't know. Yeah. But this is not what we wanted to do for our own life. Yeah. And that's why they fought the whole pressure, and now they are still successful. They are equally successful and they're doing exactly, things. Yeah. Like ये same चीज होती है like when actors go towards direction or something and then people are like we are not going to see them more Yes. on screen. इसका एग्जांपल यार याद दिया रहा है, बहुत फेमस एग्जांपल था ना अपने, मेरे ख्याल से जीना ने इसलिए छोड़ा था ना चेल्सी परेटी ने. किसने? पता नहीं जीना मेरे को, ब्रुकलिन नहीं. वाली. पता नहीं.
अरे जीना, अच्छा, उतने मुझे लगा वो इसलिए जिन्ना, चला था ना कि एक्टिंग के लिए चलती नहीं। नहीं मुझे जिन्ना लगा। तो बेस्ट एग्जांपल ये है ना भाई, द 90s शो एरिक ने छोड़ा ना। So yeah, so there are so many examples like Eric from the 90s show or Gina from Brooklyn Nine-Nine. These characters left at their own time and they might, they wanted different things from Yeah, their career. But the fans are still, they want them back and they're forcing, but pressurizing them or forcing them is not the right thing to do. true. Yeah. So talking about peer pressure, like peer pressure is what causes so many children to actually, students and not just students, everyone to just, sometimes just decide to give up on their life. And like I have noticed in the past 1.5 years, 6 children committed suicide in my campus. And every time someone like commits suicide, उसके बाद डायरेक्टर का नोट आता है, they are like we are going to do something about it. And उसके बाद life is back to normal. No professor is giving a crap to what the students are going through or whatever. Even mid pandemic, students were like they didn't know कि कहाँ जाना है, क्या करना है. And the professors were like we want our what you call assignment. यहाँ तो चलो हमारे यहाँ तो ठीक था, मैंने कई IIT में यहाँ पर हुआ जहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट से पता चला कि द प्रोफेसर एक्चुअली मेल्ड देम आउट कि अगर तुम लोगों के पास वो नहीं है लाइक यू आर स्टिल इन कैंपस, तो यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट टू मी इन पेन ड्राइव. मुझे एक चीज बताना, कोविड के टाइम में कौन बोलेगा पेन ड्राइव में असाइनमेंट जाके सबमिट करो मुझे. लाइक दिस इज 2020 एंड प्रोफेसर आर स्टिल कॉजिंग प्रेशर, तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि तुम लोग कितना प्रेशर प्रोवाइड कर देते हो इन स्टूडेंट. प्रेशर, या एंड देन वी आफ्टर कुछ हो जाता है फिर वो बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट. तो शांत सिंह राजपूत की डेथ ऐसी हुई एंड देन डेथ के See, बाद बोल रहे हैं every मेंटल हेल्थ. हाँ, I just realized that कि एक के भी like you call it social media influencer और actor actresses whatever, तो उनके एक भी पोस्ट में मेंटल हेल्थ मेंशन नहीं, और सुशांत का हो गया ये सब, बट सारों के पोस्ट मेंटल हेल्थ पे आने लगे, लाइक वी आर हियर टू यस, हेल्प यू. लाइक पहले कहा थे तुम, राइट? एग्जैक्टली. पहली बात तो तुम, मुझे पता है कि ऑडियंस के लिए कर रहे हो, एवरीवन नोज दैट या ऑडियंस के लिए कर ट्रू, रहे हो तुम लोग, पैंडरिंग तो करनी पड़ती है. बट एटलीस्ट तुम जरा ट्रूथ रखो ना उसमें कि ऑडियंस के लिए कर रहे हो, तुम सब चीजें नहीं कर सकते हो मेंटल हेल्थ के लिए. बिकॉज अगर मैं इंट्रोवर्ट की तरफ थोड़ा सा, मतलब इंट्रोवर्ट होने की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो रहा हो धीरे धीरे, मतलब हो गया था इंजीनियरिंग में, तो मेरे को मेरे प्रॉब्लम्स को फेस करना आ गया था. इवन इट वाज लाइक अ प्रेशर टू मी, बट वो इतना प्रेशर नहीं आया क्योंकि मुझे पता था कि हाउ टू फेस इट. मैंने उसको या प्रेशर की तरह नहीं ले आई टुक इट एज अ चैलेंज कि यार ये कुछ नहीं है, ये हो जाएगा. क्या एक सब्जेक्ट में मुझे बैक लगा था कि थ्योरी ऑफ कंपटीशन में, बट ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुझे ही बैक लगा, आधे स्टूडेंट्स फेल हो गए थे क्योंकि पेपर वाज टफ. तो मैंने उसको कंसिडर ही नहीं किया क्योंकि इसी द टीचर टीचिंग दैट सब्जेक्ट वाज लाइक वेरी ग्रेट. उन्होंने हमको जो कॉन्सेप्ट सिखाया, मैंने सिर्फ बैक के पेपर के 3 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया और स्टिल मैंने ज्यादा स्कोर किया बिकॉज पेपर वाज इजी. सो बेसिकली वही जो आजकल सब लोग मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट बन गए, which is what we are trying to address here. कि professional help is more important rather than just trying to hear your friend. Obviously, and so basically, being a therapist, I already suggest people that you should talk to your friends about this, and it is important because that trust is already built up. जो बट थेरेपिस्ट के बट साथ फ्रेंड्स बिल्ड के साथ करने में, तुम अगर तुम शेयर कर रहे हो तो यू शुड बी श्योर दैट उस फ्रेंड ने कंसेंट हाँ ट्रू, दिया है तुम टू ऐड किसके दैट साथ, प्रेशर टू हिट लाइफ आल्सो. या अगर तुम एंड अगर अपने फ्रेंड को जजमेंटल, अपनी प्रॉब्लम बताते हो मेंटल प्रॉब्लम, तो उसके फ्रेंड के ऊपर भी वो मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज ही वैसा डजंट नहीं केयर अबाउट रे. यू. सी, नहीं नहीं लोग इवन, देख के बताओ, क्योंकि क्या होगा या कि तुम बोलोगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो बंदा उसको सीरियसली ही नहीं लेगा, राइट? एंड इज ये लाइक ये दोस्तों के तो साथ कुछ भी होता ही है, प्रॉब्लम नहीं है, यस, क्योंकि हर एक के लिए प्रेशर इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? या कि किसी को बैक लगा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को बच्चे नहीं हो रहे, ये दिस काइंड्स ऑफ ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर, और या हर एक के लाइफ में अगर वो बंदा बोल रहा है कि यार मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो अगर सामने वाले बंदे के लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है 3 साल से, तो वो बोलेगा ये तो कुछ भी नहीं है. हाँ हाँ, हाँ एंड देन इट तो बिकम्स ऑब्वियसली, अ कंपटीशन कि डिक्लाइन भाई कर, कौन इफ यू, कौन ज्यादा खराब है हाँ, लाइक. नहीं एंड दैट बिकम्स अ जोक बेसिकली, सो यू या हैव टू चूज योर फ्रेंड्स वाइजली कि क्या पे किसको बताना है, और या ऑब्वियसली यू कैन एग्जैक्टली. चूज प्रोफेशनल हेल्प, Yeah, a because therapist would be a there are so better many option. times that I have noted that while I was in campus and I've noticed that someone is going through some problem. तो वो अगर अपनी problem if you will tell it to like a guy circle in hostel, you know how this concept है, वो अपनी problem बताएगा, बोलेगा चलो भाई दारू पीने चलते तू ठीक हो जाएगा. And I'm like dude, this is not the way you handle a problem, a crisis.
crisis तुम discuss करो, you figure it out, you note down what to do, and then you discuss it out and you like find a solution. लाइक मैं खुद को इतना लकी समझता हूँ कि मेरे या जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं कि जिनके साथ मैं मेरे प्रॉब्लम शेयर कर सकता हूँ। बट इंजीनियरिंग मैंने जिनके साथ किया वो ऐसे फ्रेंड्स हैं कि मैं कभी भी उनको कॉल करता हूँ और मैं मेरी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। लाइक वो मुझे थोड़ा मोटिवेट करेंगे। मेरे अभी लिए भी तो मेरा एप्लीकेशन अपोजिट की, मेरे लिए भी लाइक ऑब्वियसली यहाँ मैं मेरठ में हूँ, यहाँ पर तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, बट लाइक इवन इन कैंपस दे आर क्वाइट रेयर फ्रेंड जो कि मैं बोलूंगा कि जिनके साथ लाइक आई कुड ट्रस्ट एंड शेयर माय प्रॉब्लम विद, बट या मोस्ट ऑफ माय और फ्रेंड्स थैंकफुली लाइक लकीली केम आउट फ्रॉम द ऑनलाइन ओरिजिन। बट जहाँ मुझे ऑनलाइन के थ्रू मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो भी मेरे को ऑनलाइन मिली, एंड तुम लोग मुझे ऑनलाइन मिले, एंड लाइक तुम लोगों के साथ जब मैं शेयर करता हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करता हूँ, दैट इज मच मोर कंफर्टेबल देन जस्ट It, calling up any guy who was I was in campus. सी एंड सामने वाले बंदे से बंदी में क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग चाहिए Yeah, कि अगर सामने वाला सुन रहा है तो उसका पूरा सुन लो। yeah, उसको ऐसे I, डिक्लाइन मत करो बीच में कि अरे ये तो सबके साथ होता है, ऐसा मत बोलो, क्योंकि उसके लिए वो प्रॉब्लम शायद बड़ा हो, तुम्हारे लिए वो कुछ भी नहीं हो सकता। ये चीज इवन I, पेरेंट्स के साथ भी होती है। आई सीन दैट यू टेल अ yeah, प्रॉब्लम टू योर पेरेंट्स एंड द पेरेंट्स लाइक हमने तो ये प्रॉब्लम अपने टाइम में इससे भी ज्यादा फेस करी थी। इट्स लाइक या डूड, एज अ पेरेंट पहली बात तो तुम अपने बच्चों को चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे की लाइफ तुमसे बेटर हो, तो तुमको कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए पहली बात तो, बिकॉज दैट शुड बी योर true. टारगेट। तो और कंपैरिजन ना करो, एंड इफ जनरेशन योर किड हैज अ गैप और प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी गैप भी फोकस ऑन दैट। मैटर करते हैं, राइट? या वो दो चीजें कंसिडरेशन में आएंगी यहाँ पे, जनरेशन गैप एंड टेक्नोलॉजी गैप, बिकॉज कि उनके टाइम पे कुछ चीजें अवेलेबल नहीं थी बट अपने टाइम पे है। या बट वी आर फेसिंग डिफरेंट इश्यूज, दे यूज्ड टू फेस लाइक डिफरेंट इश्यूज। या True. नहीं, and choosing your so peer pressure से ये कैसे related है? So choosing your peers is also that important of a job because दो तरह के peers हो सकते हैं. So basically peers is friends and the people around you. So choosing them, अगर तुम लोगों ने ऐसा choose किया जो negative way में तुम्हें लेके जा रहे हैं, जो तुम्हें बुरी आदतें लगा रहे हैं, लेकिन उसमें भी मतलब बुरी आदतें ही जस्ट इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग यू, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें हो सकती है एंड ब्रिंगिंग यू डाउन इज नॉट द पॉइंट ऑफ योर पियर्स. या Your peers should be supporting you in you getting big and they helping you with the same thing and you doing the same for them. जैसे मैंने I had a group for I had a school group जहाँ पे I used to hang around 7-8 साल तक हम लोग एक साथ थे. But later I realized that I didn't grow as much as I should have. And मैंने अभी जो ग्रुप बनाया है which is with me for about 7 to 8 years, हम लोग कहीं पे भी मिलते हैं, we have a productive discussion every time या and which helps me in every aspect of my life. हम्म एंड वो भी कैजुअल रहता है, ऐसा नहीं कि वो बहुत ऑफिशियल वे में बात करते हैं. इट्स डैम कैजुअल एंड दैट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू ग्रो. If you're going to consider peers, then your parents can be as supportive as they can. You just need to like trust them. क्योंकि कुछ लोग का क्या होता है कि क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं 4th स्टैंडर्ड में था, मुझे चीजें समझ में आने लगी थी, सो आई स्टार्टेड शेयरिंग एवरीथिंग विथ माय पेरेंट्स। वो मुझे बोलते थे कि पूरे दिन क्या हुआ, तो मैं आई यूज्ड टू टेल देम एवरीथिंग, लाइक रिक्शा में बैठने से स्कूल जाने तक, इंटरवल तक या से पूरा। तो वो एक शेड्यूल स्टार्ट हो गया कि लाइक उनको पता चल गया कि मैं सच ही बताता हूँ। तो कभी कभी स्कूल में फाइट्स वगैरह, झगड़ा वगैरह हो जाता था। या तो वो मतलब वो सारी चीजें होती है अभी, बट मेरे पेरेंट्स मेरे साथ इतने सपोर्टिव रहे कि मतलब मुझे ऐसा किसी चीज की कमी ही नहीं होने दी, या राइट? लाइक दिस विल बी लाइक अ फनी थिंग टू मेंटली बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉट बाइंग स्टफ, कि मेंटली उन्होंने ये नहीं होने दिया कि कोई समझ बुली कर रहा है। हमारे डैड यूज्ड टू कम टू लाइक स्कूल, वो देखते थे कि टीचर्स को बताते रहे, एंड अदर गाइज आर लाइक कि ये कुछ होता है तो ये अपने डैड को लेके आता है। बट मैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि आई वॉज टू वीक टू फेस दोज प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैं खुद से हैंडल नहीं कर पाता 10th स्टैंडर्ड में। और अभी की सिचुएशन में वो खुद से मैं हैंडल कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो स्टार्टिंग में अगर सपोर्ट नहीं मिलता था तो अभी मैं वो कुछ नहीं कर नहीं पाता कर था। पाते। या
like this would be funny thing to say, like post my breakup, my best support was from my parents. Like most of the people, Yeah. they are like they try to hide things from their parents, and they try to just but मेरे साथ जैसे ही वो हुआ, and I like the first call was to my mom, and they understood in the first minute. They like क्या हुआ, and I just told them the whole thing, and I cried down. But like उसी time pandemic भी चालू होने वाला था, and then the whole time, but my parents like they were supportive of me the whole time. So that's what I would say, that be open to your parents about everything, and try to educate your parents about what you are going through. And Exactly. even the education about the new things in life, the new technology, and how the generation, like वो generation gap नहीं रहेगा if you give them that open education too. So like my mom and Yeah. dad, they watch all the modern Netflix shows and everything. So at least in that way, they realize the potential of how the life has changed everything. या अभी भी मैंने टीवी जब लेके दिया था तो माय मॉम इज लाइक इसको केबल वगैरह लेना पड़ेगा राइट। मैंने बोला कि नहीं, वी हैव इंटरनेट। मैंने उनको सिखाया 1-2 महीने में वो अभी एक्सपर्ट हो गए। उनको सब चीज़ें आने लगी कि कहाँ जाके क्या लगाना है ऐसा। यार लाइक मेरे को नेटफ्लिक्स दो पे महीने जाके में मूवी कैसे। like 2 महीने हो गए घर आए हुए. I haven't watched a single Netflix show or movie. I couldn't get the time. My parents have been watching more Netflix and Hotstar and Disney Plus and all more than me. So I'm like time कितना बदल गया है, and it's visible now. It's a good thing to talk to your parents because that's the only emotional support that you will get without any hesitation. Exactly. Yeah. So thank you for tuning in. This will be continued in the next part.